Hi everyone, welcome back to the channel. I hope everyone is good. So this is another session, but here we are not at all going to focus on any of a specific topic per se. But today, this is a special topic specifically for NABARD people, and I would say NABARD aspirants here. Now, you people already know that I am a faculty for ESI here, so my focus is entirely going to on what? That is specifically ESI. Now, in today's video, we are actually going to cover that how you people need to cover ESI and that too specifically for NABARD. Now, when I talk about the regulatory examinations like NABARD and RBI, I know that most of the people of RBI would be here who are actually thinking of preparing for NABARD as well. But remember the difference between and one subject which is common, between both of the papers is of course ESI here. ESI refers to what? That is economic and social issues here, but the pattern is quite different if you're preparing for both of the examinations. Like if you know it very well, you people will be able to observe that yes, the pattern is little different, right? I'm not at all focusing here specifically on syllabus because syllabus is mostly same, but the kind of questions that are asked, the level of difficulty of question that is asked, the kind of current affairs or I would say reports from where you get questions are quite different. So that is the reason I said the pattern is quite different, otherwise the syllabus is all same. So here I'm going to tell you how within this particular period of time you can make yourself prepare for NABARD examination. This is what is going to be the entire focus here. Alright, so when I talk about the ESI portion here now, alright, before that, this is the link of my Telegram channel. All of the new joinees here, the one can join it. This is Economy with Payal. Alright, so before even that, right, when I talk about NABARD paper, so everyone knows here, NABARD basically is divided into three of the phases. The first phase starts with the first one is of course prelims, you call it phase 1 also. Next is phase 2. And if you are able to succeed in both of the phases here, of course you will be called for interview as well, right? Now when I talk about phase 1 here, of course this is merit based, and of course we are having qualifying sections also. When I talk about phase 1 specifically here now, you people need to cover for 8 disciplines. The first one is tests of reasoning, English language is there, computer knowledge is there, quantitative aptitude, decision making is also there. Now remember, these 5 generally are what? That is qualifying nature, right? These are qualifying papers only. But when I talk about general awareness, ESI as well as ARD, these are merit sections. These are merit sections, as in the more you get, the better you score. So merit section is there. Like first 5 are just qualifying in nature. You need to qualify, right? You people just need to qualify these papers, first 5 papers. But 6th, 7th, 8th, as in ARD, ESI and general awareness, these are the merit based papers here. So what we get to know, the first thing what we get to know, that ESI is part of merit 1, right? So we cannot leave anything here, anything as in those topics specifically which is having more weightage, those topics which are having more weightage. So this is what we are going to analyze here, like which are the topics which are frequently asked, like every year, which are the topics are the one which we people are having high chances that yes, इसमें से जो question है वो पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है? उसके बाद ना, this is the story of phase 1 only, right? उसके बाद अगर मैं phase 2 की बात करूं, so phase 2 is also divided into 2 of the papers here. The first one talks about general English basically. यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मार्क्स है वो कितने हैं, दैट इज 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है? उसके बाद अगर मैं ESI की बात करूं, सो ESI एंड ERD जो है वो इकट्ठा यहाँ पे मेंशन्ड होता है. जनरली जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 30 होते हैं. व्हेन आई टॉक अबाउट द फेज 2 हियर, सो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आल्सो. ऑब्जेक्टिव में भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव में भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. नाउ like out of these 30 questions na, few will be of 2 marker, few will be of 1 marker as well. Now because this 50 marks include both ESI and ARD also, right? But generally it includes 25, right? So 25 जो है इसमें से किसका रहेगा, ESI का रहेगा. So what we got to know, यहाँ पे मेरे को जो ESI है उसमें 40 टारगेट करना है, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं, सो दैट रिमेन्स बिटवीन 25 से लेके 30 के बीच में भी अगर आप करोगे ना, दैट रिमेन्स सेफ स्कोर हियर, राइट? दिस इज safe score. I'll tell you how you can go for this safe score as well, right?
Next talks about what? That is phase 2 here. This is phase 2. Now here, if you are able to decode it, it includes 25 marks here, right? This is specifically of ESI and this is what? Objective type. उसके बाद अगर मैं descriptive की बात करूँ ना, so total you get 6 questions. Out of that, you people need to attempt 4 questions only, right? Now when I talk about ESI specifically part here, so most probably, right, I'm again repeating, most probably 3 out of these 6 would be of ESI itself, right? There are chances that, this also happens that sometimes you get 4 of ARD, sometimes you get 4 of ESI only. So this can also happen, but most probably it is 3 only, right? And you people need to attempt how many questions? That is 4 itself. So it is of course 50 marker जो है ये हमारा ये जो descriptive section है वो रहेगा, ठीक है? So this is something which is important from the examination here. All right. Along with that, when I talk about ESI, so let's start with the syllabus decoding only. उससे भी पहले one thing that I would like to tell you here. Syllabus क्यों important है? Because it tells you way, it gives you way, right? It gives you, I would say, path that where to go, right? Now you people can argue on this thing also that ma'am स्टैटिक जो है वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट करंट अफेयर्स में से ना ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अराउंड 90% एवर आई वुड से मोर देन या फिर इक्वलेंट टू 90% जो क्वेश्चंस है वो सिर्फ करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं. लेस देन और इक्वलेंट टू जो 10% है वो सिर्फ स्टैटिक पोर्शन से पूछा जाता है. Now, what is even the fun of doing the static portion? Like, what is even the fun of doing just current affairs when you have no knowledge of static portion here, right? I'll tell you what is the importance of static portion and why even, like many people say this thing, ma'am, कि हम current affairs करके चल जाएंगे तो static portion मेरा complete हो जाएगा. नहीं, क्योंकि I know that current portion की जो weightage है वो ज़्यादा है, but आपको जो करंट पोर्शन है ना वो भी सिलेबस में से ही पूछा जाएगा. जो करंट पोर्शन है वो उसी से पूछा जाएगा जो आपके सिलेबस का पार्ट है. अदरवाइज करंट अफेयर्स इन इटसेल्फ इज सो ह्यूज इन नेचर, दे कैन आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम एनी ऑफ द पार्ट्स है, राइट? So of course when I talk about ESI current affairs, so they also follow what? That is syllabus itself. So yes, syllabus is the most important part here. Now here it starts with what? That is Indian economy, structural institutions and features भी है, economic growth भी है, economic development भी है, as in we are having number of the topics up. But you people need to understand this thing first. ESI is what? That is economic and social issues, right? तो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में जो मेन टॉपिक होते हैं वो कौन से हैं? एज इन दोज टॉपिक्स व्हिच आर एग्जैक्टली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव. लेट्स स्टार्ट विद इकोनॉमिक इश्यूज फर्स्ट. इन्फ्लेशन, राइट? इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग कोई भी नंबर है, कोई भी डेटा है, कोई भी recent decision है, that becomes very important from the examination perspective, right? कोई भी recent change है, that exactly becomes the most important one here. Next, when I talk about the social issue part here, poverty is part of it, right? Unemployment is part of it, employment is part of it, as in they are part of social issues. So yes, this becomes very very important. You cannot even think of leaving it. BOP is important. Fiscal policy and monetary policy is important. How they are impacting what? That is money supply in an economy. That is important to do. The relationship is exactly very very important. उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे ग्रोथ एस्पेक्ट्स की बात करूँ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है. ग्रोथ एस्पेक्ट्स एज इन हो सकता है दे आस्क यू अबाउट द जीडीपी नंबर्स, राइट? दे आस्क यू अबाउट पर कैपिटा इनकम नंबर. सो दीज आर एक्चुअली बिकम द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन टॉपिक्स. नेक्स्ट इज अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, राइट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर मैं बात करूँ, सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है. एनवायरमेंट को लेके कोई भी अगर चीज न्यूज में है, for sure a question is going to be asked from that, right? Next is international institutions. International institutions, again the most important one here. जैसे IMF हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद हो सकता है वर्ल्ड बैंक हो गया. इन्होंने अगर किसी भी स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूट करा है, जैसे हमारी मेरिटेज स्कीम है, ठीक है? जैसे हमारी मेरिटेज स्कीम है ना, मेरिटेज स्कीम इज इन न्यूज बिकॉज कंट्रीब्यूशन हैज बीन मेड बाय द वर्ल्ड बैंक ऑल्सो. टोटल 4200 करोड़ है, बट 2100 जो है वो वर्ल्ड बैंक ने कंट्रीब्यूट करा है. सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट? उसके साथ साथ अगर IMF की कोई भी रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की कोई भी रिपोर्ट है, सो दैट ऑल्सो बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फ्रॉम द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव. सो आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी हियर दैट exactly which topics are the most important one here, right? All right. Now when I talk about the ESI portion here, now always remember from your examination perspective, what are the 3 pillars of ESI? That starts with schemes, right? It starts with schemes.
Next, what is very important is reports and indices. Third one, the most important one here is current affairs. Current affairs as in associated with specifically syllabus, right? So these are the major topics on which there are high chances that you people get a question from this particular portion itself, right? So ESI में से schemes is important, reports and indices is important, syllabus decoding is also very important. So current affairs अगर पूछे जाएंगे syllabus के according ही पूछे जाएंगे, right? Now why I have given you this entire data, because what I've observed after doing previous year question analysis here, it just says कि static portion है ना, जो हमारा जो static portion है उसमें से जो डेटा पूछा जाता है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट इज जस्ट अराउंड 10%. जो करंट अफेयर्स है उसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अराउंड 90% तक जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है. उसके लिए ये जो सारी इनिशिएटिव्स है हमारे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगेन जस्ट बिफोर यू पीपल आस्क मी कि मैम अगर आपने बोला कि करंट अफेयर्स जो है 90% वेटेज कैरी करते हैं, सो हमें पास्ट कितने मंथ्स के जो करंट अफेयर्स है वो करने पड़ेंगे. सो ऑलवेज इंश्योर लाइक आफ्टर डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस ओनली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड द रीसेंट आरबीआई केस ऑल्सो, लास्ट जो 3 मंथ्स है ना, लास्ट जो 3 मंथ्स है इनके ऊपर हाई एम्फेसिस जो है वो डाला जाता है. पुटिंग डबल एस्टेरिस्क हियर सो दैट यू बेटर अंडरस्टैंड. लेट्स कंसीडर 3 एस्टेरिस्क हियर, राइट. इट इज हाईली इंपॉर्टेंट. लास्ट जो 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स होते हैं उसके अगर ESI की रिलेटेड भी हैं तो हाई चांसेस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड. उसके साथ साथ मेजरली वी कंसीडर 3 से लेके 5 मंथ्स के, ठीक है. 5 मंथ्स के आसपास भी इट इज इंपॉर्टेंट. आई एम जस्ट पुटिंग वन एस्टेरिस्क हियर so that you better understand, but you need not to miss even a single question on this 3 months, like if that is in news from maybe 5, from past 3 months here. अब स्कीम्स की रिपोर्ट्स एंड डाइसेस की अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, सो दैट ऑल्सो इज गेटिंग वेरिड हियर. फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू लास्ट 3 months ऑफ कवरेज इज एग्जैक्टली वेरी इंपॉर्टेंट. सो कोई भी स्कीम जो कि हो सकता है लास्ट 3 months में न्यूज में, बट मैं यहाँ पे जब स्कीम्स की बात करती हूँ ना तो मैं मेजरली 6 months जो है वो कंसीडर करके चलती हूँ, बिकॉज नो वन नोज दैट फ्रॉम वेयर यू गेट अ क्वेश्चन हियर, राइट. उसके साथ साथ अगर मैं रिपोर्ट्स एंड डाइसेस की बात करूँ, जैसे यूनियन बजट हो गया, ठीक है, जैसे सर्वे हो गया. So from this portion itself, this is something which was released in the Feb only, right? So ये जो particular method है of clearing or maybe of covering current affairs maybe of past 3 to 4 past 3 to 4 months only, that never works है. Why? Because यहाँ पे February में जो है वो यूनियन बजट और सर्वे जो है वो आउट करा जाता है, but yes it exactly becomes the most important one for the entire cycle here, as in I'm here talking about the competitive exams. सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो, सो ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स रिलेटेड टू दैट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. नाउ कमिंग ऑन टू द स्कीम्स, व्हाट स्कीम्स आर एग्जैक्टली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो सी स्कीम्स, अगर कोई क्वेश्चन स्कीम से पूछा जा सकता है तो वो हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा, ठीक है. जैसे अगर मैं बात करूँ पॉवर्टी एलिवेशन की, सो रिसेंटली दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन न्यूज में था. देयर आर हाई चांसेस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द पेपर, राइट. उसके साथ साथ एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी है, हो सकता है इसमें से भी जो क्वेश्चन है वो पूछा जाए. रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बार हम क्वेश्चन पुट करते हैं डिजिटल डिवाइड के ऊपर, देयर आर हाई चांसेस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो. इसके रिलेटेड कोई भी स्कीम है, यू पीपल नीड टू कलेक्ट इट बाय योरसेल्फ, यू पीपल कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन और यू पीपल कैन कीप इट बाय योरसेल्फ आल्सो, राइट. फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसे रिसेंटली जन धन योजना जो है उसके 11 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हुए हैं, ठीक है. सिमिलरली अगर मैं सोशल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से बात करूं, इंक्लूजन के एस्पेक्ट से बात करूं, APY अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, these are the schemes which have completed their 10 years. So question can be asked on this particular portion as well. Social security is part of it, right? Education, हो सकता है आपको education के ऊपर भी question पूछा जाए, हो सकता है कि वो किसी ना किसी तरीके से integrate करके question जो है वो पूछा जाए, right? So this entirely is very important. Women and child labor, अभी recently पोषण 2.0 जो है वो सेलिब्रेट हुआ है, सो देयर आर हाई चांसेस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्शन. एनवायरनमेंट को लेके यस क्वेश्चंस आर गेटिंग आस्क्ड फ्रॉम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सो यस दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. इंडस्ट्री एंड MSME, अगर मैं आप
प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस करोगे ना, सो यू विल गेट टू नो कि जो इंडस्ट्रीज है और जो एमएसएमईज है ना, इसमें से बहुत ज्यादा जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा रहे हैं ना, बहुत ज्यादा से। व्हाट आई मीन हियर दैट कंपैरेटिवली, राइट, गवर्नेंस इज इंपॉर्टेंट। जैसे गवर्नेंस में अगर मैं बात करूँ, रिसेंटली भाषिनी हैज बीन इनॉग्रेटेड, राइट, तो दे कैन आस्क यू वन क्वेश्चन ऑन भाषिनी ऑल्सो, राइट, कि हम गवर्नेंस को बेसिकली कैसे जो उसकी पेनिट्रेशन है वो इंक्रीज कर रहे हैं मार्केट में। हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ, रिसेंटली जन औषधि योजना वॉज इन न्यूज, फिर उसके बाद आयुष्मान भारत योजना इज इन न्यूज। सो दीज आर द पोर्शन व्हिच एग्जैक्टली बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। Urbanization is important. Recently, Smart and Amrut also completed their years. Smart and Amrut. So I want what? That is specifically the basic facilities here. All right. Next is urbanization. We are done with that. Tribal affairs. You people just remember recently Adivani has been released, right? So as and when, wait, Adivani, as and when you just ensure that you are doing a complete coverage of that, of course you people will get extra marks there. आदिवानी में कौन सा क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा? लैंग्वेजेस के, किन किन लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट ग्लोबलाइजेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। सो यस, स्कीम्स में जो ग्लोबलाइजेशन है उसके रिलेटेड भी जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द रिपोर्ट्स है। Now when I talk about reports itself, this completely says कि यहाँ पे सबसे पहले कोई भी ऐसी रिपोर्ट जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जो है वो रिलेटेड है, इकोनॉमिक ग्रोथ एज इन जो कि क्वांटिटेटिव नंबर्स के साथ रिलेटेड होती है। ना व्हेन आई टॉक अबाउट द ग्रोथ है, हो सकता है एनएसए का डेटा आए, ठीक है, हो सकता है आपको पर कैपिटा इनकम के ऊपर जो है वो डेटा पूछा जाए, हो सकता है कि आपको कुछ नेशनल इनकम के ऊपर डेटा हो। सो दैट एक्चुअली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर को लेके अगर मैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की बात करूं, अगर मैं ये न्यूज में था, है ना, हो सकता है कि आपको इस स्कीम के ऊपर या फिर हो सकता है कि एफएओ का डेटा जो है वो पूछा जाए। उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट, पीएलएफएस का डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन हियर, राइट। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है, जो रिसेंट सर्वे है, क्वार्टरली सर्वे है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। ना अगेन आई एम टेलिंग यू, ये जो सर्वे है आप इसको यूज कर सकते हो अपने डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए भी, आप आंसर राइटिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। इन अ सिमिलर वे क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑल्सो। रूरल डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस के रिलेटेड अगर कोई भी रिपोर्ट है, अगर कोई भी डेटा है, दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ जो SECC का जो डेटा है, दैट इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट, एंड बैंकिंग सेक्टर, जैसे अभी अगर मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगी, अभी आरबीआई ने जो रिलीज करा है फाइनेंशियल इंक्लूजन डेटा, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ आरबीआई जो है वो एनुअल रिपोर्ट भी रिलीज करता है, उसमें से भी कभी कभार जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सो रिपोर्ट्स लाइक दिस एक्चुअली बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन हियर। हेल्थ एंड सोशल इंडिकेटर को लेके हो सकता है कोई जो क्वेश्चन है वो पूछा जाए। एजुकेशन को लेकर हो सकता है कि जो एक क्वेश्चन है वो पूछा जाए, अगर इसको लेके कोई भी रिपोर्ट है, दैट एक्चुअली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। नीति आयोग को लेके कोई भी रिपोर्ट है विच हैज बीन रिलीज्ड बाय नीति आयोग, दैट एक्चुअली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जेंडर गैप, राइट, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट एक्चुअली जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इंडस्ट्रीज एंड एमएसएमई एंड द एंटरप्रेन्योरशिप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। हो सकता है आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर जो क्वेश्चन है वो पूछा जाए। एनवायरमेंट क्लाइमेट को लेके जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव अचीव दिस रैंक, दैट इज 99th है। उसके साथ साथ जो नीति आयोग रिलीज करती है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी एंड वेलफेयर इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक्स, डिविडेंड एज इन हमारा यूथ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल एंड सोशल वेलफेयर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू गेट अ स्कीम्स anything related to this this particular part, that actually becomes the most important one here, right? Now here are the question. Before we do analysis of it, let me tell you that from where you can access these reports, because what I told you, ESI के जो major pillars है वो कौन से है? एक तो है हमारे schemes, एक तो है हमारी reports and indices, और तीसरा हमारा क्या है? दैट इज स्पेसिफिकली आर करंट अफेयर्स एंड दैट टू विच आर रिलेटेड टू सिलेबस इटसेल्फ, राइट? ओके,
Now when I talk about three of the parts here, basically what happens, अगर स्कीम तो मतलब हो सकता है कि जो हमारी स्कीम है, जो डोमेस्टिक स्कीम है, वैसे तो आपको जो अवेलेबिलिटी है वो पीआईबी में भी मिल जाएगी, इजिली मिल जाएगी, राइट? सो यू पीपल नीड टू रेफर टू पीआईबी फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन. नाउ अगेन इन पीआईबी देयर आर टू ऑफ द सेक्शंस देयर. एक तो जो डेली रिलीज होता है वो सेक्शन रहता है, उसके साथ साथ देयर इज एक्सप्लेन्ड सेक्शन ऑल्सो where the entire data is given to you in a very full-fledged manner. So that becomes important, right? Report, अगर कोई national report है, yes, you people can get a clarity of it from the PIB itself. प्लस आप जो वो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ऑफिशियल साइट पे जाके अगर आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे समरी उसकी जो है वो मेंशन्ड होती है. आई माई सेल्फ यूज समरी मेनी टाइम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग क्लासेस फॉर ऑल ऑफ यू. अगर कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट है, राइट, अगर हो सकता है कि कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट है, सो उसकी भी आपको अवेलेबिलिटी न्यूज़पेपर में इजीली मिल जाएगी, ठीक है? सो दैट इज इंपॉर्टेंट. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स हियर एंड दैट टू अकॉर्डिंग टू सिलेबस पार्ट, सो ऑफ कोर्स ईच एंड एवरीथिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आरबीआई के जो सर्कुलर्स होते हैं मोस्टली अभी जो मैंने देखा है उसमें से भी जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाने लगे हैं. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है जिसमें बहुत बड़ा चेंज आया, जैसे रिसेंटली जो एमएसएमई है उसके थ्रेशोल्ड्स को चेंज करा गया है, सो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट? रिसेंटली अगर 3 to 5 मंथ्स में कोई भी जो न्यूज़ है वो है हमारी न्यूज़ में, सो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. आई एम अगेन पुटिंग ट्रिपल एस्टेरिस्क हियर सो दैट बेटर अंडरस्टैंड 3 मंथ्स के जो पोर्शन है, जो करंट अफेयर्स है, वो सुपर इंपॉर्टेंट है. 5 मंथ्स में मैं सिंगल एस्टेरिस्क जो है वो मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी जो है वो मिल जाए. सो आई होप यू गॉट अ क्लियर क्लैरिटी हियर दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव. नाउ लेट्स डिकोड सम ऑफ द क्वेश्चंस एज वेल. नाउ द फर्स्ट हियर इफ यू आर एबल टू सी ऑफ 2021 इज स्पेसिफिकली ऑन स्कीम ओनली, ठीक है? स्कीम के ऊपर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, दैट इज समग्र शिक्षा 1. उसके बाद यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. नाउ इफ यू आर एबल टू सी, ये ईएसआई का पार्ट है एंड दैट इज सोशल इशू, राइट? सोशल इशू में भी ये जेंडर का भी पार्ट है, प्लस ये एजुकेशन पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, राइट? सो अगर आपको क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में पूछा जाए, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, सो इन बोथ ऑफ द वेज यू कैन राइट आंसर देयर. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, अगेन पार्ट ऑफ व्हाट, दैट इज रिपोर्ट्स इटसेल्फ, राइट? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग भी जो है वो पूछा गया है. किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, अगेन वन स्कीम बट स्पेसिफिकली ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर हियर. उसके साथ साथ अगेन देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम स्कीम इटसेल्फ. दिस टॉक्स अबाउट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस provide what, that is financial services to underserved and unbanked rural areas. So that is also big, that is also very important. उसके बाद 2022 में there was one question related to global gender gap report. So एक रिपोर्ट हमने देखी financial stability report, दूसरी रिपोर्ट हमने देखी gender gap report की. तो these are the questions which are important. उसके साथ साथ this is also something which is related to education. So हाँ, ये सारे जो questions है वो भी majorly पूछे जाते हैं. आपको basic understanding जो है वो होनी चाहिए. 2022 की अगर मैं पेपर की बात करूं तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू एलआईसी हियर, राइट? सो एलआईसी की अगर मैं तरफ से बात करूं तो श्रम योगी मानधन एग्जैक्टली इज द करेक्ट आंसर. अच्छा, नाउ सुरक्षा के ऊपर भी एक पूछा गया था, मातृवंदना योजना के ऊपर भी पूछा गया था, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे इन पेपर एनालिसिस की बात करूँ तो देखो मोस्टली जो स्कीम्स है ना वो या तो न्यूज में होगी किसी पर्पस के कारण, ठीक है? हो सकता है. अब अगर जब आपने स्कीम्स की जो है वो क्लैरिटी लेनी है ना, तो व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज एन इवन, व्हाई इज इट इवन इन न्यूज. सो व्हाई इन न्यूज इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इन न्यूज इज इंपॉर्टेंट, राइट? उसके साथ साथ ऑफ कोर्स व्हेन आई टॉक अबाउट व्हाई इन न्यूज हियर, सो यू पीपल नीड टू गेट द क्लैरिटी हियर. उसके साथ साथ आपको स्टैटिक पोर्शन जो है वो भी पता होना चाहिए, कब रिलीज हुआ था, किसने रिलीज करा था, क्या पर्पस था, और अगर कोई भी डेटा में चेंज है दैट इज एग्जैक्टली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? जैसे हमारे अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर मैं तरुण स्पेसिफिकली अगर मैं तरुण प्लस इनिशिएटिव या फिर अगर मैं तरुण प्लस की बात करूँ, विच बीन एडेड इन द मुद्रा योजना नाउ, राइट? सो तरुण प्लस क्या है, एक अलग कैटेगरी जो है वो ऐड हो चुकी है, शिशु है, किशोर है, तरुण है. अब तरुण प्लस जो है वो ऐड हो चुका है और इसका अमाउंट कहाँ तक रीच आउट हुआ है, दैट इज अप टू 20 लाख नाउ. So a question can be asked from this particular portion as well, right? और उसके साथ उसका static portion becomes the most important one. उसके साथ साथ ही जो क्वेश्चन है सीपीआई के ऊपर पूछा गया था 2023 में. अच्छा, अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस की बात करूँ ना, तो 2022 में, 2023 में या फिर 2021 में मोस्टली जो क्वेश्चन की वेटेज थी वो ज़्यादा थी हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स में. 2023 में जो क्वेश्चंस की वेटेज है वो भी गवर्नमेंट स्कीम्स की ज़्यादा थी, बट कंपैरेटिवली जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें से भी जो ज़्यादा क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं, ठीक है? सो द ट्रेंड इज गेटिंग चेंज्ड हियर.
गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ साथ यू पीपल नीड टू गो थ्रू द स्टैटिक पोर्शन एज वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन लाइक वन, दिस इज द क्वेश्चन विच इज अगेन ऑन व्हाट, दैट इज सीपीआई इटसेल्फ. अच्छा, यूनियन बजट से जो क्वेश्चन है बहुत बार जो है वो यूनियन बजट से भी पूछा जाता है. उसके बाद ये अगर मैं बात करूं फिर से बजट से ही पूछा गया है, ठीक है. नाउ व्हाई आई हैव कंपाइल्ड दीज एरियाज हियर सो दैट यू गेट टू नो कि हाँ बजट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर्वे से भी पूछे जाते हैं. और अगर मैं बात करूं हमारे स्पेसिफिकली स्टैटिक एंड करंट पोर्शन की, सो दैट इज समथिंग व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट. उसके साथ साथ दिस इज समथिंग पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है. क्रॉस ब्रीडिंग which is not part of this is ARD question here, right. MSP and here WTO policies is a dual effect on the Indian economy which is completely static in nature, right. अगर कुछ recent news है तो आप ऐड कर दीजिए, otherwise very very important from WTO perspective as in properly part of static portion itself. फिर उसके बाद आवाज मातृ वंदना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया which is related to fishery sector, right. एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर. फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स, अलोंग विद दैट डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. सोशल फॉरेस्ट्री के ऊपर जो क्वेश्चन है वो भी पूछा गया है ना. अगर मैं 2023 की बात करूँ, सो पीपल कैन क्लियरली सी दे आस्क्ड यू अबाउट द एक्सटेंशन एजुकेशन, यू पीपल नीड टू हैव अ क्लैरिटी अबाउट दैट. फिर उसके बाद 5 प्रॉब्लम्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर मार्केटिंग. आरबीआई जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन जो इंडेक्स है, द वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स हैज बीन इंक्रीज्ड इन 2023. इन द कंटेक्स्ट डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ इट, राइट. उसके साथ साथ सोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज बीन इंक्रीज्ड इन इंडिया. नाउ वी पीपल नीड टू पुट एन इनसाइट ऑन टू इट. उसके बाद डेमोग्राफिक डिविडेंड, मोस्टली जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इसी के ऊपर बनेगा, ठीक है. So I think the entire clarity has been given to all of you here. Now these are the major topics which are exactly very very important from the examination perspective here. हमने ये भी देख लिया कि किस तरीके से कवर करना है, हमने ये भी देख लिया कि कौन कौन सा जो पोर्शन है वो exactly बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. So I think mostly हम हर एक चीज़ की जो है वो क्लैरिटी कर चुके हैं. Rest is on you people only. How do you prepare for it? Even if having any doubt till now, you people can ask me in the comment section. Of course, I'm going to address that out. But I think अभी तक जो है वो full fledged clarity हो गई होगी कि हमने ESI को basically कैसे approach करना है, कैसे जो है हम इसको better understand करके and see. बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा है तो हमें यहाँ पे फिल्ट्रेशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो उस पर्सपेक्टिव से आई थिंक दिस मच पोर्शन इज ऑल अगर मैं इस पूरे पोर्शन की बात करूँ, सो दिस इज व्हाट मेक्स ESI. And I think this particular portion is more than enough. इससे ज़्यादा जो है वो किसी की भी क्लैरिटी नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा जो है वो पूछा भी नहीं चाहता है ना. क्योंकि हम जब पेपर की प्रिपरेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन भी उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. विदाउट फिल्ट्रेशन ऐसे तो आप सिलेबस के साथ यू विल स्टार्ट गोइंग ऑन विद इट एंड विद इट ओनली. अदरवाइज यू जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग स्कीम्स मे बी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑल्सो. देयर इज नो फन ऑफ दैट, राइट. हमें सिर्फ वही करना है जो एग्जैक्टली न्यूज़ में. दैट इज द रीजन of making this entire video so that you better understand it. Still having any doubt, you can just ask me in the comment section. I'll address your issue. Thank you so much. Take care.